Previous slide, we shown that the definition of Cantor set or Cantor ternary set. In these slides, we will prove the results related to Cantor set. First result is theorem 2.10.1. In this, we will prove that each point in Cantor set can be expressed in the form of ternary expansion. Let this ternary expansion is x equal to, if x be it take a element in C, then you can expand it in the form x equal to summation of an upon 3n. Summation starts from n equal to 1 to infinity, and where each n is either 0 or 2, and conversely. Now let us prove this result. Just as with decimal representation, every x in closed interval has a representation of the form of x equal to n equal to 1 to infinity an upon 3 की power n, where an equal to 0, 1 or 2. First we write the open interval which are obtained in proving the Cantor set. E1, E2, E3, they are open interval and union of open intervals, and their length of E1 equal to 1 by 2 and length of E2 equal to this, and C1 is the union of closed interval, C2 is the union of closed interval. Therefore, taking these points in mind, if we take the points of E1, you can express in the form of x equal to 1 by 3. You can see here E1 first point, and further points you can expand in the summation n equal to summation of an upon 3n, n equal to summation start n equal to 2 to infinity. Now again the points of E2 has x equal to 1 by 9 plus 0 or 2 in brackets, the second term, plus n equal to 3 to infinity. Summation starts from n equal to 3 to infinity of an upon 3n. Here you can see here in C1 the closed interval. C1 is the closed interval 0, 1 by 3 union 2 by 3 or 1. Here you can take first point 0, 2 by 3, and in E2 you can take further points from 1 upon 9. In this way, the point of E3 as you can write x equal to 1 upon 227. 27 you can see here in E3, and 0, 2 by 3, 2 by 9 or 2 upon 3 plus 2 by 9 you can take, and further points plus summation starts from n equal to 4 to infinity n upon 3n. You can see here C2 or E3. And in general you can take the points of En as 1 upon 3n plus summation start from I equal to 1 to n minus 1 of bi upon 3i. यहाँ ये जो मिडिल पार्ट लेते आ रहे हैं ये समेशन के रूप में लिख दिया, प्लस इसी तरह से लास्ट पार्ट समेशन के रूप में लिया आई इक्वल टू स्टार्ट एन आई इक्वल टू n प्लस 1 टू इन्फिनिटी आई अपॉन 3i, और पी आई क्या है 0 और 2 हो सकता है, ये आप देख सकते हैं पहले उसमें भी, और ए आई क्या हो सकता है 0, 1 और 2. ठीक है, इस तरह से हम अगर कोई पॉइंट ई एन में लेते हैं तो एक ही रिप्रेजेंटेशन है इसका x इक्वल टू, इसे समेराइज कर लिया पूरे समेशन को, i इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी समेशन स्टार्ट्स फ्रॉम i इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए आई अपॉन 3i, वेयर ए आई इक्वल टू 0 और 2 फॉर i लेस देन n है. अगर जो बीच वाला समेशन उसके लिए ए आई क्या है 0 और 2 है, बाकी ए एन इक्वल टू 1 है, और फॉर i ग्रेटर देन n के लिए आप ए आई हैज़ नो रेस्ट्रिक्शन एक्सेप्ट दैट these AIs are neither all 0 nor all 2s. Therefore, x can be extended in the form of, in general, x summation start from n equal to 1 to infinity n upon 3n, where n equal to 0, 1 or 2 you can write generally. Now we will prove the uniqueness of this result. Suppose there are two different points in ternary expansion, ternary set, Cantor ternary set C. Let this is x1 and x2. Both are different here. Now we will prove that कि दोनों यूनिक हैं, सेम ही पॉइंट हैं, तो हमें शो करना है कि x1 इक्वल टू x3, और
x1 इक्वल टू x3, इट मीन्स an इक्वल टू bn फॉर एवरी n के लिए प्रूफ करना है। हमने लेके चलते हैं कंट्राडिक्शन से, लेट इट पॉसिबल an इक्वल टू नॉट bn फॉर सम n, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो हमने उसमें से एक फॉर सम n के लिए लेट कैपिटल N बी दी स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर n ले लिया, और सच दैट ऐसा लिया कि n इक्वल टू bn, और अगर इनका डिफरेंस लिया जाए क्या एक कैपिटल N माइनस कैपिटल bn तो 2 हो गया, और बाकी के लिए क्या हो गया, मोड ऑफ an माइनस bn लेस देन इक्वल टू 2, यानी कि बाकी के मतलब फॉर एवरी n के लिए। अब यहाँ पर 0 इक्वल टू किसके बराबर होगा, हमने समेसन लिख दिया, समेसन ऑफ n इक्वल टू स्टार्ट फ्रॉम स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर an माइनस bn अपॉन 3 की पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू, जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो ये ऐसे हो गया, और हमने फिर इनकी वैल्यू रख ली सबकी। तो जब हम वैल्यू रखेंगे और n टेन टू इन्फिनिटी ये करेंगे तो ये आ गया, क्योंकि ये समेसन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 2 अपॉन 3 की पावर n ये 1 के बराबर होता है, तो इसीलिए ये किसके बराबर होगा 1 अपॉन 3n। तो इससे प्रूफ हो गया कि 1 अपॉन 3n लेस देन इक्वल टू 0, तो विच इज ए कंट्राडिक्शन है। तो देयर फॉर an इक्वल टू bn फॉर ऑल n, तो ये यूनिकनेस, देयर फॉर x1 इक्वल टू x2, ये यूनिकनेस प्रूफ होगी। ये हो गया कि अगर हम कोई पॉइंट लें कैंटर सेट में तो उसका एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन होगा टर्नरी एक्सपेंशन के फॉर्म में। नाउ वी गो टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 19। In 19 page, we prove the theorem 2.10.2 prove that each point of Cantor set C is a limit point of C। अब ये है कि आप जानते हैं मीट्रिक स्पेस में पढ़ा है लिमिट पॉइंट की क्या डेफिनेशन है, ये दी हुई है लेफ्ट राइट साइड में। इफ़ ए इज ए सबसेट ऑफ आर देन ए पॉइंट पी इन आर इज सेट टू बी लिमिट पॉइंट ऑफ ए इफ एवरी नेबरहुड एन पी एप्सिलॉन ऑफ पी कंटेन्स ए पॉइंट ऑफ ए डिस्टिंक्ट फ्रॉम पी। इट मीन्स जो नेबरहुड एन पी एप्सिलॉन ई इंटरसेक्शन ए इक्वल टू नॉट एम्प्टी, ठीक है, या ये कंटेन्स ए पॉइंट डिस्टिंक्ट फ्रॉम, ये हो गया ए इंटरसेक्शन एन पी एप्सिलॉन माइनस पी, ये अगर इसमें से निकाल दिया जा तो एक डिफरेंट नॉन एम्प्टी होगा, डिफरेंट पॉइंट रखेगा, या सीधे इसे ऐसे ही समझिए पॉइंट इज सेट टू बी लिमिट पॉइंट इफ एवरी नेबरहुड ऑफ पी कंटेन्स ए पॉइंट डिस्टिंक्ट फ्रॉम पी। दूसरा समझिए दूसरे वाले डेफिनेशन, एक क्लोज सेट कब होता है, जब उसके सारे पॉइंट उसी के अंदर होते हैं, ऑल पॉइंट्स कंटेन रखता है। तो ये जो प्रूफ है इससे हमें दूसरी बात भी प्रूफ होती है, वो इस स्टेटमेंट से यदि हमारा प्रूफ हो जाता है ईच पॉइंट ऑफ कैंटर सेट सी इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ सी, इसका प्रत्येक पॉइंट कैंटर सेट का उसका अपना लिमिट पॉइंट है, तो ये क्लोज्ड भी है, इसका मतलब इसी से प्रूफ हो जाएगा क्लोज्ड भी है। तो इसे प्रूफ करने के लिए एक हमने एक्स नोट पॉइंट लिया सी में कैंटर सेट में, तो इसका एक टर्नरी एक्सपेंशन होगा एक्स नोट इक्वल टू पॉइंट, इसे इस तरह से डिनोट करते हैं 0.3 A1 A2 A3, 3 नीचे लिया जाता है, इसके ऊपर पॉइंट रखता जाता है, तो एक टर्नरी एक्सपेंशन हो गया वेयर एन इक्वल टू 0 और 2 हुआ। अब हम एक सीक्वेंस बना लेते हैं एक्स एन ऑफ पॉइंट्स एज फ्लोस, और वो ऐसे बनाते हैं जो एक्स नोट से डिफरेंट हो, जैसे x1 टर्नरी एक्सपेंशन लिया A1 डैश A2 A3 AN इस तरह से। ऐसे ही दूसरे x2 में पॉइंट में क्या लिया, A2 डिफरेंट ले लिया, A2 डैश लिया, x3 में A3 डैश ले लिया, A1 A2 से डिफरेंट, xn में AN डैश डिफरेंट ले लिया, और डिफरेंट लेने के लिए हमें लेना होगा AN डैश बराबर 0 इफ़ AN इक्वल टू 2 और 2 इफ़ AN इक्वल टू 0। तो डिफरेंट हो गया किससे, एक्स नोट से। तो इससे यह हो गया कि क्लियरली एक्स एन इज ए सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स इन सी और सच दैट एक्स एन डिफरेंट फ्रॉम एक्स नोट फॉर एनी एन, दस लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी एक्स एन इक्वल टू एक्स नोट हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्स नोट इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ सी, इट मीन्स एवरी पॉइंट ऑफ कैंटर सेट इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ इट इटसेल्फ। तो इससे ही प्रूफ हो गया कि सी इज़ ए क्लोज सेट भी है। अब जैसे ये है कोरोलरी 2.10.3 है, प्रूव दैट द कैंटर सेट इज़ परफेक्ट सेट। तो परफेक्ट सेट के लिए क्या होगा कि परफेक्ट सेट, ये डेफिनेशन दे रखी मैंने ऊपर, ए सेट ए इज सेट टू इज परफेक्ट इफ एंड ओनली इफ ए इज द डेराइव सेट। डेराइव सेट्स क्या होता है, डेराइव सेट ऑफ ऑल लिमिट्स पॉइंट होता है, ठीक है, और ए सेट टू बी डेंस इन इट सेल्फ इफ ए इज ए सबसेट ऑफ डेराइव सेट। तो यहाँ पे हम प्रूफ करेंगे कैंटर सेट इज ए परफेक्ट सेट। पहले में तो प्रूफ हो गया कि कैंटर सेट इज ए क्लोज सेट, अब दूसरे में क्योंकि ये सारे लिमिट पॉइंट रखता है तो इट इज़ ए डेंस इन इट सेल्फ,
Therefore, C is a perfect set. Cantor set is a perfect set. Now we come to theorem 2.10.4. Prove that the Cantor set is uncountable. तो काउंटेबल जैसे हमने पहले रिजल्ट में प्रूव किया है काउंटेबिलिटी में कि क्लोज इंटरवल जीरो इज अनकाउंटेबल है, आर्क अनकाउंटेबल है, इसी तरह से यहाँ पर कैंटर सेट को भी हम अनकाउंटेबल दिखाएंगे। तो हम इसे कंट्राडिक्शन से प्रूव करते हैं। प्रूव लेट इफ पॉसिबल कैंटर सेट इज सी इज काउंटेबल। जब ये काउंटेबल होगा तो 1-to-1 कॉरस्पोंडेंसी रखेगा विद द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो इसमें कैसे पॉइंट होंगे, सी इक्वल टू ये सीक्वेंस टाइप में होंगे x1 x2 x3 x4 xn एंड सो ऑन, इस तरह से होंगे। और जब ये सीक्वेंस हो गया, जब प्रत्येक पॉइंट किस में होगा, x1 x2 किस में, टर्नरी एक्सपेंशन है, क्योंकि कैंटर सेट में तो इन्हें टर्नरी एक्सपेंड की फॉर्म में टर्नरी एक्सपेंशन की फॉर्म में एक्सपेंड करेंगे। जैसे x1 टर्नरी एक्सपेंशन a11 a12 a13 a11। नाउ कंटिन्यू टू पेज 20। तो यहाँ पर देखिए x2 इक्वल टू फिर टर्नरी एक्सपेंशन a21 a22 a23 एंड a so on एंड a2n अप टू a2n एंड सो ऑन। ऐसी x3 टर्नरी एक्सपेंशन a31 a32 a33 अप टू a3n एंड सो ऑन। इसी तरह से xn टर्नरी एक्सपेंशन an1 an2 an3 अप टू ann एंड सो ऑन, वेयर aij इक्वल टू 0 और 2, इस तरह से है। अब कंसिडर ए सीक्वेंस an, हमने ऐसा सीक्वेंस किया कि an जो एलिमेंट है वे 0 हैं इफ़ an इक्वल टू 2 और an 2 है इफ़ an इक्वल टू 0। तो हमने एक एलिमेंट ले लिया x इक्वल टू टर्नरी एक्सपेंशन a1 a2 a3 an, ऊपर जैसे लिया गया इस तरह से हमने a3 अप टू an एंड सो ऑन इज इन C। अब ये हुआ कि x इक्वल टू नॉट xn, लेकिन हम तो से कैंटर सेट को काउंटेबल ले चुके हैं तो उसमें सीक्वेंस के ही होंगे। लेकिन अगर डिफरेंट एलिमेंट लिया जा, ये भी जो है कैंटर सेट में है, इसका मतलब तो हमारी जो एज्यूम्सन है उसका कंट्राडिक्शन आ गया। तो वी गेट ए कंट्राडिक्शन ऑफ आवर एज्यूम्सन, हैंस सी इज अनकाउंटेबल। राइट नाउ कुछ ये नोट है, कहीं पर पूछ ले जाता है, कहीं अगर वायो इस एग्ज़ाम वगैरह होते हैं, सिंस कैंटर सेट इज़ अनकाउंटेबल। जब अनकाउंटेबल और कहाँ कैसे प्राप्त किया, ये इंटरवल से प्राप्त किया गया है। और इंटरवल की कार्डिनलिटी क्या होती है, सी होती है अनकाउंटेबल सेट की, तो इसकी भी कार्डिनलिटी स्मॉल सी होगी। अब ये डेफिनेशन है कुछ जैसे 2.11 कैंटर फंक्शन की डेफिनेशन 1 है कैंटर फंक्शन की। पहले वाली डेफिनेशन क्या है, द फंक्शन f maps from Cantor set to closed interval is called the Cantor function। और इसमें अगर कोई x c में ले लिया जाए तो f(x) किस में होगा, क्लोज इंटरवल 0-1 में। तो ये कैसे एक्सपेंड होगा, f(x) इक्वल टू समेशन ऑफ an अपॉन 2 की पावर n+1 समेशन स्टार्ट फ्रॉम n इक्वल टू इन्फिनिटी 1 to infinity, वेयर x बराबर ये बाइनरी एक्सपेंशन टाइप हो गया, n इक्वल टू 1 to infinity 2n अपॉन 3 की पावर n विद n इक्वल टू 0 और 1। तो इज कॉल्ड द कैंटर फंक्शन। अब नोट द कैंटर फंक्शन f इज मोनोटोन इंक्रीजिंग एंड ऑन टू बट नॉट 1-1, ये इसके प्रॉपर्टी है। अब जो नेक्स्ट है वह है लिवेग कैंटर फंक्शन और लिवेग फंक्शन और लिवेग सिंगुलर फंक्शन। तो ये एक्सटेंशन ही है कैंटर फंक्शन का। तो एक फंक्शन लिया, सी के स्थान पर हम क्लोज इंटरवल ले लेते हैं, दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ सी। क्योंकि सी जो प्राप्त होता है कैंटर सेट वो 0-1 इंटरवल में रिमूव करने के बाद जो क्लोज्ड इंटरवल आते हैं सी एन, उनका इंटरसेक्शन यानी कि स्मॉलेस्ट सेट होता है उन सेट का। तो द फंक्शन फाइव मैप्स फ्रॉम क्लोज इंटरवल 0-1 to 0-1 satisfy the following properties। Number 1, the Cantor function f maps from C to close interval 0-1 can be extended to the function phi maps from close interval 0-1 to 0-1। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, phi is on to and monotone increasing in close interval 0-1 but not 1-1। इसी तरह से थर्ड प्रॉपर्टी phi 0 इक्वल टू 0 एंड phi 1 इक्वल टू 1। इसी तरह फोर्थ प्रॉपर्टी phi इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन 0-1। phi इज कॉन्टिन्यूअस किसके ऊपर है, क्लोज इंटरवल के है, देयरफॉर इट इज़ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। और जो फिफ्थ है phi इज कॉन्स्टेंट होगा ऑन ईच मिडिल थर्ड इंटरवल्स रिमूव्ड व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग सी।
प्रत्येक रिमूवल इंटरवल पर फाई कांस्टेंट होगा मिडिल इंटरवल पर। और सिक्स्थ में क्या है, फाई इज द रेस्ट्रिक्शन मैप इज द कैंटर फंक्शन एफ। फाई सी इज द कैंटर फंक्शन, क्योंकि सी इज ए सबसेट ऑफ क्लोज इंटरवल 0 1, तो फाई सी इज, अगर कैंटर सेट पे चला जाता है, कैंटर फंक्शन बन जाता है, तो हम क्लोज इंटरवल 0 1 के स्थान पर डोमेन में सी रिप्लेस करते हैं, तो कैंटर फंक्शन बन गया ये। तो देन ऑल दीज प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई होती हैं तो फाई इज कॉल्ड द लीबेक कैंटर फंक्शन, और लीबेक फंक्शन और लीबेक सिंगुलर फंक्शन हो गया। कंटिन्यू टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 20 और लास्ट पेज ऑफ दिस लेक्चर। कंटिन्यूम हाइपोथेसिस। कंटिन्यूम हाइपोथेसिस क्या है कि जो इसमें ये कहा गया है कि किसी भी दो कार्डिनल नंबर के लिए, जैसे हम मान लिया मोटिवेटेड बाय द फैक्ट दैट फॉर एनी फाइनाइट कार्डिनल नंबर n ग्रेटर देन 1 लिया, 2 3 भी हो सके 4 भी हो सके, तो देर इज ऑलवेज ए कार्डिनल नंबर बिटवीन n एंड 2 की पावर n के बीच में एक कार्डिनल नंबर जरूर होगा। अगर इसे नेचुरल वे में सोचा जाए काउंटेबल और अनकाउंटेबल सेट के बीच में, तो देर इज ए कार्डिनल नंबर म्यू सच दैट एल्फ नोट लेस देन म्यू लेस देन 2 अल्फा नोट, 2 अल्फा नोट इज इक्वल टू सी। तो सच दैट एल्फ नोट लेस देन म्यू लेस देन 2 की पावर एल्फ नोट इक्वल टू सी। दिस प्रॉब्लम इज yet unsolved and is called Cantor's continuum problem. However, many important results in mathematics have been proved by assuming that there is no cardinal number between alpha naught और c। कितने रिजल्ट ये भी एज्यूम करके प्रूफ हो चुके हैं कि एल्फ नोट और 2 की पावर एल्फ नोट के बीच में कोई कार्डिनल नंबर नहीं है, और दिस एज्यूम्शन इज कॉल्ड द कंटिन्यूम हाइपोथेसिस। अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस सी इज द सेकंड ट्रांसफाइनाइट कार्डिनल नंबर। कंटिन्यूम हाइपोथेसिस के अनुसार एल्फ फर्स्ट तो ट्रांसफाइनाइट कार्डिनल नंबर एल्फ नोट हो गया, सेकंड सी हो गया, सी इज दी कार्डिनलिटी ऑफ अनकाउंटेबल सेट, तो सी कंटिन्यूम हाइपोथेसिस के अनुसार सी इज दी सेकंड ट्रांसफाइनाइट कार्डिनल नंबर हो गया। जनरलाइज कंटिन्यूम हाइपोथेसिस, इसी से इसे जनरलाइज किया, इसे नंबर की वजह आप सेट पे लेंगे। तो आप कैंटर थ्योरम आपने पढ़ी है, क्या है, अगर ए सेट है और उसके पावर सेट है तो कार्डिनलिटी ऑफ ए लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ लेस देन इक्वल टू नहीं स्ट्रिक्टली लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट। तो ये एज्यूम्शन क्या है, तो इसमें क्या है, द एज्यूम्शन दैट नो मैटर व्हाट द इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट कुछ भी हो, एक ही जगह एल्फ नोट रख दिया, कुछ और भी रख दिया इनफाइनाइट सेट, तो देर इज नो कार्डिनल, देर इज नो सेट विद कार्डिनल नंबर म्यू सच दैट ए बार लेस देन म्यू लेस देन पावर सेट की कार्डिनल नंबर, ठीक है, इज कॉल्ड द जनरलाइज्ड कंटिन्यूम हाइपोथेसिस, GCS भी कहते हैं इसे। इट कैन इजिली बी सीन दैट द कंटिन्यूम हाइपोथेसिस इज ए पर्टिकुलर केस ऑफ द GCS। जो कंटिन्यूम हाइपोथेसिस है जनरलाइज्ड कंटिन्यूम हाइपोथेसिस का एक पर्टिकुलर केस हो गया, नेमली द केस व्हेन ए इज द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो ये आपका कंटिन्यूम हाइपोथेसिस होगी, और ये यहाँ पर जो सेकंड चैप्टर है आपका इनफाइनाइट सेट कंप्लीटेड हो गया, और ये आपका फर्स्ट इंटरनल में आएगा। जो फर्स्ट चैप्टर की जितनी प्रॉब्लम अब तक लेक्चर दिए हैं उन सब में से ही प्रॉब्लम पूछी जाएंगी। थैंक यू।